السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے بہت ہی قابل قدر استاد محترم اور اپنی جمعیت اور جماعت کے فخر مرکزی جمعیت اہل حدیث دلی کے امیر محترم فضیلت الشیخ جناب اصغر علی امام مہدی صاحب حفظہ اللہ، اس بزم کی روح رواں جناب فضیلت الشیخ مطیع الرحمن صاحب، اس سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، علماء کرام، دعات، مبلغین، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، انشاءاللہ ہم مقررین کو سنیں گے، لیکن کچھ باتیں ہیں، میرے دل کے کچھ احساسات ہیں اور جذبات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہید کے طور پر، مقدمے کے طور پر، کہ ایک مسلمان کے لیے آخرت اصل ہے نہ کہ دنیا۔ ہمیشہ ایک مسلمان اور ایک مومن کو آخرت کی فکر دامنگیر رہنی چاہیے، اور دنیا میں وہ کوئی بھی کام کرے تو وہ جو بھی کام انجام دے گا اس میں آخرت کی فکر دامنگیر ہوگی، اور اسے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کروں گا تو آخرت میں کیا یہ میرے لیے نفع بخش ہے یا نقصان دہ۔ یہ ایک مسلمان کو ہمیشہ سوچ کر کے قدم اٹھانا چاہیے اور کوئی بھی کام اسے کرنا چاہیے۔ تو ایک مسلمان کے لیے آخرت ہی سب کچھ ہے اور وہی اصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت یہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں، آج دنیا میں ہم ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں جن کے پاس مال و دولت، پیسے ہیں۔ میری محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا میں تو وہ آدمی جس کے پاس دولت ہے وہ بڑا ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، مگر دنیا میں بڑا آدمی کون ہوگا؟ دنیا میں پیسے والا آدمی کون ہوگا؟ دنیا میں کوئی آخرت میں مال و دولت نہیں ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا، پونجی نہیں ہوگی۔ وہاں پونجی کس چیز کی شکل میں ہوگی؟ جس کے پاس زیادہ نیکی ہوگی، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار رہا ہوگا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ افضل اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت آدمی کون ہے؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری تمہید یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ہم بارہا سنے ہیں اور سنتے رہے ہیں علم اور علماء کی فضیلت۔ تو جتنی بھی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں وہ سب فضیلتیں کس سلسلے میں ہیں، کن کے لیے ہے، کس علم کے لیے ہے؟ وہ علم کتاب و سنت والوں کے لیے، علماء کے لیے، جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علماء کی تعریف کرتے ہوئے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے کما حقہ علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ڈر اور تقوی کس کے اندر ہوگا؟ جو صحیح معنی میں عالم ہوگا۔ اللہ کا ڈر اور خوف یقیناً جو اللہ کا علم جس کے پاس ہوگا، کتاب و سنت کا علم جس کے پاس ہوگا، آخرت کے بارے میں جو زیادہ جانے گا وہی آخرت سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے علماء کرام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب آئیے ان دو باتوں کو سمجھنے کے بعد میں جو کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ ہاشم مدنی صاحب نے کچھ باتیں عرض کی جو میرے دل کی باتیں تھیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو اگر دنیاوی تعلیم، عصری علوم دے کر کے اگر بڑی ڈگریاں دلا دیتے ہیں، انجینئر بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، سائنٹسٹ بنا دیں، ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً میں اس کا مخالف نہیں ہوں، آپ پڑھائیے، شوق سے پڑھائیے، ضرورت بھی ہے، اور ہمیں ان تمام میدانوں میں آگے آنا ہے، مگر یہی کامیابی نہیں ہے۔
असल कामयाबी किस में है? असल कामयाबी है इल्म किताब व सुन्नत में। किताब व सुन्नत का अगर आप अपने बेटे को अगर आलिम बना दें, इज्जत उसी में है। मैं आपको याद दिलाऊंगा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वो बात कि उन्होंने कहा था कि नहनु कौमुन अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम। आज हम समझते हैं कि अगर दौलत हो गई या किसी हम बड़े मनसब पर फायज हो गए, अगर सरकारी लेवल पर किसी कोई बड़ा मनसब मिल गया, मंत्री बन गए, तो हम कामयाब हो गए। नहीं मेरे भाई, हमारी इज्जत किस में है, हमारा शरफ किस में है, हमारी बुलंदी किस में है? कुरान ने इसका जवाब दिया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी वजाहत की, नहनु कौमुन, कि हम ऐसी कौम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इज्जत बख्शी है इस्लाम की खातिर। इस्लाम ही की वजह से हमारी इज्जत है। हम खलीफा हैं या कोई हाकिम है या बादशाह है या कोई बड़ा मनसब मिल गया है, इसकी वजह से हमें इज्जत नहीं मिली। इज्जत किसी की वजह से है? इस्लाम की वजह से। जो जितना ज्यादा इस्लाम पर अमल करने वाला होगा वो उतना ज्यादा बाइज्जत होगा। आज बहुत अफसोस का मकाम है। आज मदारिस का जायजा अगर लें हम, खास करके हमारे बंगाल में और इस सीमांचल में, मदारिस का एक जाल बिछा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे जो बुजुर्गान थे उनका यकीनन कोई मकसद रहा होगा और उनकी नीयत अच्छी रही होगी। लेकिन आजकल जो हालात हैं, उन हालात का जायजा लेने के बाद ये समझ में आता है कि जिस मकसद से ये इदारे खोले गए थे, ये मदारिस खोले गए थे, वो मकसद बिल्कुल फौत है। बहुत अफसोस लगता है। मैं इसी चूंकि तालीम से जुड़ा हुआ हूँ और अक्सर जो हमारे जामियात इमाम बुखारी में बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर बंगाल से आते हैं, तकरीबन 70-80%। तो तलबा के हालात देख करके यानी मुझे बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है, रोना आता है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे मदारिस के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। वक्त और उम्र मेरे भाइयों ज़िंदगी में बहुत कीमती है। जो वक्त गुजर जाता है कभी हाथ नहीं आएगा। और हम सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें किस मकसद से पैदा किया। हम सुनते रहते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम यहाँ आए हैं मुख्तसर मुद्दत के लिए दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आबाद किया है। क्यों? अल्लाह की इबादत के लिए। अब आइए, मसाजिद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की सबसे बेहतरीन सरजमीन करार दिया। सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह क्या है? मस्जिदें हैं। क्यों? इसलिए कि मस्जिद में अल्लाह की इबादत की जाती है। जिस मकसद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें भेजा है वो मकसद वहाँ पूरा होता है। हम वहाँ इबादत करते हैं, अल्लाह का जिक्र व अज़कार करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। तो इसलिए मस्जिद दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है। और उसी रवायत में आगे फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व अबग़दुहा अस्वाक़ुहा व अबग़दुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और दुनिया की सबसे बदतरीन जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक क्या है? बाजार है। क्योंकि बाजार जो है इबादत के मुनाफी चीज़ों के लिए है। अल्लाह का जिक्र वहाँ नहीं होता, शोर शराबा होता है, गाली गलौज होता है, और दुनिया की जितने भी दगाबाजी, चोरी, डकैती, सब कुछ वहाँ अंजाम दिया जाता है। इसलिए दुनिया की सबसे बदतरीन जगह क्या है? ये बाजार है। मैं जो कहना चाहता हूँ, जो इबादत हमें मस्जिद में अदा करने की वजह से दुनिया की मस्जिदें सबसे बेहतरीन जगह हैं, और जहाँ इबादत का तरीका सिखलाया जाता है उसी का नाम मदरसा है। हमने सुबह के वक्त सुना था मदारिस का क्या किरदार होता है। मदारिस वो जगह है जहाँ हमें इबादत का तरीका बतलाया जाता है, एक इंसान को इंसान बनाया जाता है, एक इंसान को अमनो सलामती और अमनो आश्ती का पैगंबर बनाया जाता है, सिखाया जाता है वहाँ के एक इंसान सच्चा और पक्का इंसान कैसा होता है, मुसलमान कैसा होता है, मोमिन कैसा होता है। इन मदारिस में ये तालीम दी जाती है और उन्हें सिखाया जाता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम दिल से इखलास के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम अपने बच्चों को मदारिस में दें। पहले दीनी तालीम दें, उसके बाद दुनियावी तालीम। अगर आपने दीनी तालीम से महरूम रखा अपने बच्चों को और सिर्फ दुनियावी तालीम पर, असरी उलूम पर इक्तिफा किया, यकीन जानिए आपने उसकी आखिरत बर्बाद कर दी, ख़राब कर दी, और वो आपके पास हिसाब लेगा। बहुत अफसोस का मकाम है। आज हम यानी जो मदारिस में बच्चे आते हैं, एक तो ये है कि मदारिस का हाल बहुत ही बुरा है। चाहे वो जिम्मेदार कोई भी हो, कमेटी हो, सेक्रेटरी हो, मंडल हो, सरदार हो, आज बहुत ही बुरी पोजीशन में हमारे मदारिस। कोई पुरसाने हाल नहीं, चंद घंटे पढ़ाई होती है, कहीं 10 बजे कहीं 9 बजे तक पढ़ाई खत्म हो जाती है। उसके बाद तलबा क्या करते हैं, असातिज़ा क्या करते हैं, ड्यूटी करते हैं नहीं, बच्चों की तरबियत होती है नहीं, इससे उनको कोई सरोकार नहीं।
मेरे भाइयों याद रखिए, अगर आपने मदरसा खोला है, अगर आप इदारा चला रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं। अल्लाह के यहाँ बात पुरस होगी आपकी, आपसे अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा तुमने ये अमानत उठाई थी, ये जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन अदा किया या नहीं, इसके बारे में आपको जवाब देना होगा। तो अगर हमने मदरसा खोल के रखा है, मैं गुजारिश करूंगा तमाम जिम्मेदारों से कि आप मदारिस की खबर लीजिए। मैं ये कहा करता हूँ मजलिसों में कि अगर जितने भी मदारिस हैं, अगर सही तौर पर जो मनहज और या निसाब वहाँ है, दाखिली निसाब है, अगर उन मनाहिज को सही तौर पर हम पढ़ाएं, अच्छे असातिज़ा रख करके, जो दीनी और असली जिस तरह का भी निसाब है, अगर उन असली और दीनी उलूम को सही तौर पर हम पढ़ा दें, तो यकीन जानिए कि पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। आज मदारिस का हाल बहुत बुरा है, पढ़ाई का मेयार इंतहाई खराब है। वजह क्या है? बहुत सारी वजूहात हैं। आज हमारे मदारिस में बच्चे आते हैं, यानी जो निज़ामिया मदारिस हैं, एडमिशन ले लिए, लेकिन उनका असल मकसद और हदफ क्या होता है कि हम बंगाल बोर्ड में आलिम करेंगे, फाजिल करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। मेरे भाइयों, यही हम कामयाबी समझते हैं। कामयाबी अगर आप इसमें समझते हैं और आप इसी को असल वो समझते हैं, मेरे भाई मुहद्दिस कहाँ से पैदा होगा, मुफस्सिर कहाँ से पैदा होगा, सही आलिम कहाँ से पैदा होगा, किताब और सुन्नत का आलिम कहाँ से आएगा? अगर सब लोग नौकरी सरकार के नौकर बन जाएंगे, सरकारी नौकरी करने लगेंगे, एक अच्छा पक्का सच्चा मुसलमान कहाँ से बनेगा? उलमा कहाँ से आएंगे? कौन हमें दीन सिखाएगा? मेरे भाइयों, जरूरत ठीक है, आप जाएं, जरूरत है आप करें, लेकिन जो बुनियादी तालीम है, मदारिस की तालीम है, अच्छे असातिज़ा रख करके आप अच्छी तालीम दें। और मैं कहूँगा मेरे भाइयों, खास करके जो तलबा हैं, आप अपनी नीयत में इखलास पैदा करें। और अगर आप दुनिया की असली उलूम में जाना चाहें, आप नौकरी करना चाहें, उसी में खालिस हो जाएं, उसमें अपना नाम पैदा करें। लेकिन अगर मदारिस में आपने दाखिला लिया है, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ, इखलास के साथ, अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसमें जो आपको वक्त मिला हुआ है, अच्छे असदा मिले हुए हैं, उस वक्त से फायदा उठाइए। वक्त और इंसान की उम्र बड़ी कीमती है। ये वक्त गुजर जाने से दोबारा कभी नहीं आएगा और आप क़यामत में मरने के बाद पछताएंगे, अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, हम जाकर के दुनिया में ऐसा और वैसा अमल कर लेंगे, नेक अमल करके तुझे राजी कर लेंगे। मोहलत नहीं मिलेगी, कोई मौका नहीं मिलेगा। आपके पास अभी वक्त है, तो जो भी वक्त मिला हुआ है, आप पूरी तनदही के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ असातिज़ा कराम से फ़ायदा उठाएं। और मैं असातिज़ा कराम से भी कहना चाहूँगा, आज के इस मादा परस्ती के दौर में हमारे असातिज़ा कराम भी मुतासिर हो गए। यकीनन उन पर जुल्म हो रहा है, मुदारा की तरफ से, जिम्मेदारान की तरफ से उनके हुकूक की जो है अदायगी सही तौर पर नहीं होती है, इसमें कोई शक नहीं, जुल्म हो रहा है। मगर इस बहाने हम ये कह दें कि हमें तनख्वाह सही से नहीं मिलती है या कम मिलती है, इस वजह से हम ना पढ़ाएं, नहीं। आपने इत्तेफाक किया है, आपकी भी जिम्मेदारी है, क़यामत में आपसे भी सवाल होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे पूछेगा कि तुमने जो अहद व पैमान किया था, तुम्हारी जो जिम्मेदारी थी, तुम्हारी जो ड्यूटी थी, तुमने सही तौर पर उसको अदा किया था या नहीं। ये ज़रूरी है मेरे भाइयों। और असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी को समझे। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मदारिस में या स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में तालीम का असल मकसद ये नहीं कि हम पढ़ लिख करके बड़ी डिग्री हासिल कर लें, बल्कि वो तालीम ही नहीं है जिसके ज़रिए से इंसान सही इंसान न बन सके, बल्कि असल तालीम वो है जो आपको एक सच्चा और पक्का इंसान, अच्छा इंसान बना सके। तालीम होती है, डिग्रियां हम हासिल कर लेते हैं, मगर एक अच्छा इंसान जिसको देख करके लोग कहेंगे ये बड़ा अच्छा और नेक इंसान है, ऐसा इंसान बनने की ज़रूरत है। और हम असातिज़ा को ज़रूरत इस बात की है कि हम मदारिस में, स्कूलों में, कॉलेजों में तालीम के साथ साथ सही तरबियत करें। अभी हम सुन रहे थे सहाबा कराम के बारे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम की तरबियत कैसे की कि मुख्तसर मुद्दत में उन्होंने ऐसी तरबियत की कि पूरी दुनिया के लिए वो मिसाल बन गए और पूरी दुनिया में इसी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता चला गया और आज तक उसका असर बाकी और क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। ऐसे इंसान सहाबा कराम की तरह से तालिब इल्म और तलबा हमें बनाने की ज़रूरत है, उनकी तरह से हमें तलबा की तरबियत करने की ज़रूरत है। तो सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं है, बल्कि तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी तवज्जो दीजिए और अच्छे इंसान बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं ज़िम्मेदारों से भी गुजारिश करूँगा कि आप अपने मदारिस के अहवाल को संवारिए,
آپ دیکھیے کہاں کیا کمی ہے، ہمارے تعلیمی معیار کیسے اچھا ہو سکتا ہے، ہم ایک اچھا عالم کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے لیے بھرپور کوشش کیجیے میرے بھائیوں، کیونکہ ہم سب اللہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جس کے پاس بھی جو ذمہ داری ہے، جس کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کے بارے میں اس سے کل قیامت کے میدان میں سوال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خاص کر کے یہ مدارس، آج ہمارے جو دشمنان ہیں، دشمنان اسلام ہیں، وہ ان مدارس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، یہ ہمارے اسلامی قلعے ہیں، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج اسلام کا نہ جانے کیا ہوا ہوتا۔ یہ اسلامی قلعے ہیں اور دشمنان اسلام اس اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس نقطے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی بری نظر ہے ان مدارس پر، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان مدارس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، ان اسلامی قلعوں کو ہم محفوظ رکھیں، ان کے تعلیمی معیار کو بلند کریں اور یہاں سے ہم اچھے مضبوط اور پختہ عالم بنائیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔